हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है फैक्टर ग्रुप। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज कोसेट एंड नॉर्मल सब ग्रुप। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आइटम में जाकर देख सकते हैं। सो हियर लेट जी बी ए ग्रुप एंड लेट एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन द सेट ऑफ ऑल कोसेट ऑफ एच इन जी is denoted by g by h, where all elements of this set are left coset of h determined by or all a belongs to g. This set is called factor group or quotient group of G by H, with the operation defined by AH into BH equal to ABH for all A, B belongs to Z. To check this is a group, we have to show that this satisfies all the four properties of group, which is closure, associative, identity and existence of inverse. So here let G by H be the collection of all left coset of H determined by H in G, that is G by H equal to AH, so that A belongs to G. Then we have to first show that the operation of G by H is well defined. So here let assume AH equal to A dash H and BH equal to B dash H for some element A dash B dash belongs to G. Then there exists an element H1 and H2 belongs to H, such that we can write A dash equal to A into H1 since H is a normal subgroup of G, and B dash equal to B into H2. Then we can write A dash into B dash equal to AH1 into a BH2. So here A dash into B dash H equal to, simply put, A dash as A into H1 and B dash as B into H2. So here this is equal to A into H1 into B into H2 into H. So this is equal to A into H1 into B into H. क्योंकि यहाँ पर H2 जो है belongs to H, that means H2 into H जो होगा ये again H होगा. H is a normal subgroup, so we can write BH equal to HB. So this is equal to A H1 HB. So here again H1 into H equal to H, so this is equal to A HB. And again HB equal to BH, so this is equal to AB into H. So here we get A into BH equal to A dash into B dash H. So this operation is well defined and it obvious it satisfied closure property. Then next check for associative property. Let there is a element A, B and C belongs to G, and the AH into BH into CH equal to, we can write AH into BH equal to AB into H into CH. So this is equal to AB into CH by the operation of factor group. So this can be written as A into BC into H by associative property in G, क्योंकि G जो है यहाँ पर group है. So this can be written as AH into BH into CH. So this factor group satisfy associative property. Next जो है existence of identity. Let E be identity element in G. Then यहाँ पर E into H जो होगा ये H होगा, क्योंकि E यहाँ पर identity है group में. तो यहाँ पर AH into EH जो होगा, this is equal to A into EH by the definition of operation. So A is the identity element, so this is equal to AH. So here EH equal to identity. That means H is the identity element is this factor group G by H. Similarly, check for existence of inverse. For A belongs to G, for the element AH, there is an inverse element such that A inverse H, which is AH into A inverse H equal to A into A inverse H, which is equal to EH. This factor group G by H satisfy all the properties. So this factor group G by H is a group under this operation. Next in theorem number 1, if G is a finite group and H is a normal subgroup of G, then the order of factor group G by H equal to order of G divided by order of H. So by definition of G by H is the set of all left coset of H in G. So here order of this factor group equal to number of distinct left coset of H in G, and यहाँ पर each coset जो होगा contains exactly order of H elements, क्योंकि कोसेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सब ग्रुप H, एंड द कोसेट इज द पार्टीशन ऑफ ग्रुप G. देयरफॉर जो ग्रुप का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कोसेट
into order of the subgroup H. So here we get order of G equal to order of factor group into order of H. So from this we obtain the order of this factor group equal to order of G divided by order of H. नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. इन प्रॉब्लम नंबर 1, कंस्ट्रक्ट द फैक्टर ग्रुप Z by NZ एंड फाइंड इट्स ऑर्डर. एंड इन पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट Z by 4Z एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ Z by 4Z. तो हमें पता है NZ जो होता है इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Z. तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं NZ के अंदर ये होते हैं 0 प्लस और माइनस n प्लस और माइनस 2n प्लस और माइनस 3n एंड ऐसे ही इसी तरह के एलिमेंट्स आते हैं. Then to construct the factor group Z by NZ, we have to find all the distinct coset of NZ in Z. Then यहाँ पर जो distinct cosets हो गए, यहाँ पर देखो एक कोसेट होगा 0 प्लस NZ, दिस इज इक्वल टू NZ. तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे 0 प्लस और माइनस n प्लस और माइनस 2n एंड इसी तरह के एलिमेंट्स आएंगे. सिमिलरली एक जो कोसेट होगा 1 प्लस NZ, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे 1 प्लस और माइनस n 1 प्लस और माइनस 2n इसी तरह के एलिमेंट्स आएंगे. सिमिलरली जो कोसेट होगा 2 प्लस NZ, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे 2 प्लस और माइनस n 2 प्लस और माइनस 2n इसी तरह के एलिमेंट्स आएंगे. सिमिलरली जो कोसेट होगा n-1 प्लस NZ, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे n-1 प्लस और माइनस n-1 प्लस और माइनस 2n इसी तरह के एलिमेंट्स आएंगे. तो Z by NZ में इतने ही डिस्टिंक्ट कोसेट आएंगे क्योंकि यहाँ पर बाकी जो कोसेट है इसके अंदर आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम n प्लस NZ लेंगे तो ये जो कोसेट है इक्वल हो जाएगा 0 प्लस NZ के साथ. सिमिलरली n प्लस 1 प्लस NZ जो कोसेट लेंगे ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस NZ के साथ. सिमिलरली n प्लस 2 जो कोसेट है ये इक्वल हो जाएगा 2 प्लस NZ के साथ. तो सिर्फ मेरे कहने से तो नहीं होगा, तो चलो इसे मैथमेटिकली प्रूव करते हैं. लेट फॉर एनी आर्बिटरी k बिलोंग्स टू Z, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी कैन राइट k इक्वल टू n into q plus r, where r is the remainder and q is the quotient and r is greater than equal to 0 and less than l. So for any coset k plus nz, we can write it as n into q plus r plus nz. So this is equal to r plus n into q plus nz. तो यहाँ पर n into q जो है this is belongs to nz. So यहाँ पर nq plus nz जो होगा this is equal to again ये हो जाएगा nz. तो this is equal to r plus nz. तो यहाँ पर हम कोई भी आर्बिट्ररी कोसेट लेंगे k plus nz तो ये इक्वल टू हो जाएगा r plus nz के साथ. दैट मीन्स r जो है यहाँ पर 0 से n के बीच में है. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन n है. दैट मीन्स हम आर्बिट्रली जो भी कोसेट लेंगे तो ये जो कोसेट है इनके इक्वल हो जाएगा. तो इसके अंदर ही आएगा. सो हियर Z by NZ जो फैक्टर ग्रुप होगा इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे 0 प्लस NZ 1 प्लस NZ 2 प्लस NZ एंड ऐसे ही अप टू n-1 प्लस NZ. तो इसका जो कैली ऑपरेशन टेबल होगा बस यहाँ पर 0 प्लस NZ अगर 0 प्लस NZ के साथ ऑपरेट करेगा अंडर द ऑपरेशन ऑफ फैक्टर ग्रुप तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 प्लस NZ. तो यहाँ पर 0 प्लस NZ जो है ऑल्सो आइडेंटिटी. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 प्लस NZ. सिमिलरली 0 प्लस NZ अगर 1 प्लस NZ के साथ ऑपरेट करेगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस NZ. तो ये हो जाएगा 1 प्लस NZ. सिमिलरली 0 प्लस NZ अगर 2 प्लस NZ के साथ ऑपरेट करेगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस NZ. सिमिलरली n-1 प्लस NZ के साथ अगर ऑपरेट करेगा तो ये हो जाएगा n-1 प्लस NZ. सिमिलरली यहाँ पर 1 प्लस NZ अगर 0 प्लस NZ के साथ ऑपरेट करेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस NZ. सिमिलरली 1 प्लस NZ अगर 1 प्लस NZ के साथ ऑपरेट करेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस NZ. सिमिलरली 1 प्लस NZ अगर 2 प्लस NZ के साथ ऑपरेट करेगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 विच इज 3 प्लस NZ. सिमिलरली 1 प्लस NZ अगर n-1 प्लस NZ के साथ ऑपरेट करेगा तो ये हो जाएगा n प्लस NZ विच इज इक्वल टू 0 प्लस NZ. Similarly 2 plus NZ operator with 0 plus NZ equal to 2 plus NZ and similarly 2 plus NZ plus 1 plus NZ जो होगा तो ये हो जाएगा 3 plus NZ. Similarly ये हो जाएगा 4 plus NZ
सिमिलरली 2 प्लस एन जेड अगर ऑपरेट करेगा n-1 प्लस एन जेड के साथ, तो ये हो जाएगा n+1 प्लस एन जेड. सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एन जेड. सिमिलरली n-1 प्लस एन जेड अगर ऑपरेट करेगा 0 प्लस एन जेड के साथ, दिस इज इक्वल टू n-1 प्लस एन जेड. एंड 1 प्लस एन जेड के साथ अगर ऑपरेट करेगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस एन जेड. सिमिलरली 2 प्लस एन जेड के साथ अगर ऑपरेट करेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन जेड. सिमिलरली n-1 प्लस एन जेड के साथ ऑपरेट करेगा तो ये हो जाएगा n-2 प्लस एन जेड. एंड हियर z by nz is preciously equal to congruence modulo n. That means this is equal to zn, which elements are congruence class of 0, congruence class of 1, congruence class of 2, and SI up to congruence class of n-1. So here order of z by nz जो होगा ये हो जाएगा n. सिमिलरली z by 4z के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ये होगा 0 प्लस 4z, 1 plus 4z, 2 plus 4z, and 3 plus 4z. And here order of this factor group z by 4z equal to 4. Next in problem number 2, let G be a group which is Z18 and H is a subgroup which is generated by 6. Find all the factor group G by H and find 5 plus H plus 4 plus H. तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप है Z18, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है 0, 1, 2, 3 ऐसे ही अप टू 17, एंड इसका जो ऑर्डर होता है 18. एंड हमारे पास जो सब ग्रुप है H व्हिच इज जनरेटेड बाय 6, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे 0, 6 एंड 12, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेशन होता है अंडर द एडिशन मॉड्यूलो 18. देन यहाँ पर जो फैक्टर ग्रुप होगा G by H which is equal to, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे 0 प्लस H, 1 प्लस H, 2 प्लस H, 3 प्लस H, 4 प्लस H एंड 5 प्लस H. क्योंकि यहाँ पर 6 प्लस H जो होगा, since 6 belongs to this H, तो यहाँ पर 6 प्लस H जो होगा this is equal to H which is equal to 0 प्लस H. सिमिलरली 7 प्लस H जो होगा 1 प्लस H एंड 8 प्लस H जो होगा 2 प्लस H. इसी तरह से सारे कोसेट्स जो है इसके अंदर ही आएंगे. दैट मीन्स दिस 6 कोसेट आर डिस्टिंक्ट कोसेट. एंड हियर 6 प्लस H इक्वल टू 0 प्लस H व्हिच इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन दिस ग्रुप. एंड यहाँ पर G by H जो फैक्टर ग्रुप है इसका जो ऑर्डर होगा, सो बाय थ्योरम नंबर 1 ये हो जाएगा G का ऑर्डर डिवाइडेड बाय H का ऑर्डर. क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप, तो यहाँ पर G का जो ऑर्डर होगा 18 डिवाइडेड बाई एज का जो ऑर्डर होगा, यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो ये हो जाएगा 3. सो दिस इज इक्वल टू 6. एंड यहाँ पर 5 प्लस H प्लस 4 प्लस H जो होगा बाय द ऑपरेशन ऑफ फैक्टर ग्रुप ये हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस H. सो दिस इज इक्वल टू 9 प्लस H. तो यहाँ पर देखो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 6 प्लस H. तो यहाँ पर 6 प्लस H जो है आइडेंटिटी which is equal to 0 plus H which is equal to H. So this is equal to 3 plus H. तो यहाँ पर 5 plus H plus 4 plus H जो होगा ये होगा 3 plus H. Next in problem number 3, for any group G, determine the factor group corresponding to normal subgroup E and G itself. Then यहाँ पर जो factor group होगा G by this normal subgroup which contain the only element E, this is equal to all distinct coset of E so that A belongs to G. तो यहाँ पर E जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ये सो दैट A बिलोंग्स टू G. सो दिस इज प्रीसियसली इक्वल टू G. सिमिलरली जो फैक्टर ग्रुप G by G होगा इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे A इंटू G सो दैट A बिलोंग्स टू G. तो यहाँ पर जो है A बिलोंग्स टू G, दैट्स वाई A इंटू G जो होगा ये हो जाएगा अगेन G. तो इसके अंदर सिर्फ G ही आएगा. हियर द कोसेट G एक्ट एज एन आइडेंटिटी, सो दिस इज प्रीसियसली इक्वल टू आइडेंटिटी. आई होप फैक्टर ग्रुप का जो ये कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना.